Yeah, namaskar to all of you. We are on the 24th exercise of Master Key System. This is the last exercise, and here he has given the master key again in a very clear-cut format as to what exactly gives you that power. So, what do all of us want? All of us want that all our dreams, desires, wishes should get fulfilled. Okay. We might want to buy a house. We might want to send our child for education. We might be looking for a particular high-paying job. We might be wanting to do some, you can say, higher level education. One could be looking for a marriage. One could be looking for a child. So there are a number of things which we want. Could be possessions, a car, a mobile phone, a particular kind of a laptop, a jewelry, a vacation abroad. There could be many things. So how do you get them? What is the master key? What is that key, that kunji, which will open up all the desires for us and make it real, true, a fact for us? So we know that in today's world, we normally do not get what we want. It becomes difficult to get. Why is that so? Because we do not know the real truth about this creation. Nobody teaches us the truth about the sensing, about the matter out there, how it is getting created by a human being. Nobody is telling us about the various minds, their interrelationships. Nobody is telling us about the spirit. Nobody is telling us where the creativity is coming from, where the human emotions are coming from, where the feelings are coming from, where the thoughts are coming from, where the reasoning is happening, where thinking, concentration, contemplation, meditation is happening, where decisions are being taken, where judgment is being done, where you can say discrimination is being used. So there's a lot of activity going on inside us. We are very complex machines, but nobody tells us how to operate this. We learn how to operate a laptop, how to operate a mobile phone, but nobody tells us how to operate the human system. Nobody has given us the operating manual of a human body and a human mind and the human brain and the human system in totality. Nobody tells us. Neither in our primary school, secondary school, college, university, nobody tells us. Even when you go to foreign countries for higher education, they don't tell you. They don't tell you how to increase your internal power. They don't tell you how to increase your intelligence. They don't tell you how to take out knowledge from deep within you. Okay? They don't know. So they don't tell you. But all this is possible. And the best fact is that whatever we want in our life, it can come to us in an easy manner. This creation, this universe, or what we call the Prakriti in our local language, is moving at its own speed. It is moving automatically on its own. Okay. So, how can you prove that? The sun is getting up in the morning, rising on its own. The sun is setting on its own. The moon is going around the earth on its own. The earth is spinning on its axis on its own. The earth decides its angle of axis on its own. The earth revolves around the sun on its own. Stars move in the sky on their own. Everything is moving. Tides are moving. Wind is moving. Land is moving. Everything is moving. People are moving. Cars are moving. Buses are moving. There is hardly anything which is stationary. They say the Himalayas were not there one day, but now they are there. The rivers were not there, now the rivers are there. The oceans were not there, now the oceans are there. The continents were not there, now the continents are there. So there is constant change, motion, movement, activity going. Now, amongst all this, we have a desire. We want something. We want something for ourselves or for our family members or for our friends, relations. We want something for our country. We want something for our society. There is something which we are wanting, which we are needing, which we are desiring. So, what is the science of getting it in the easiest possible manner? The master key system says that inside the subconscious mind,
is the universal mind. And this universal mind is present in the entire universe. And whenever I think individually, I impact this universal mind. I write my program on that universal mind. I write my desire on that universal mind. And all that is physical in the world is first mental. It first comes in the mind, and then from the mind, it comes in the world outside. So, supposing you get up in the morning and you think, I will take a bath, then only you take a bath. It is not that you take a bath and then you think about taking a bath. When you open your wardrobe or your cupboard and you want to take out a shirt to wear, you think which shirt to take out. There might be 10 shirts there. You pick up a particular shirt because you want to wear it. You have thought about it. And then that shirt is on your body. So all processes are first in the mind as a thought, and then they turn physical. Then they happen in the physical world, in the material world outside. So similarly, whatever we desire for ourselves, we can very politely, gently tell it to the universal mind. You can consider the universal mind to be like the universal mother, the universal goddess who creates the entire creation. I'm just giving you a rough analogy. And then that divine mother, that universal mother, that mother of all, gives you what you want for your specific need, specific requirement. So something like that works. So whatever you are saying to the universal mind gets recorded and gets produced in the physical world outside, as per master key system. If you go and study the Sankhya Karikas, there they say the universal mind creates the subconscious mind. The subconscious mind creates subtle matter. That subtle matter creates gross matter. That means the universal mind or the buddhi has the different sanskaras, different recordings of karmas from this life and past life. They are sleeping, they are inactive, they are dormant there. And later on, when the right time comes, they become active. They move into the ahankara, which is the subconscious mind. And then they are called vasanas. Vasanas means tendencies. Now, these tendencies create subtle matter or the tanmatras. Tanmatras mean energies which are created from the body, subtle energies which the body is creating. Tan means body, matras are subtle energies. And these tanmatras become the Panch Mahabhut. Panch Mahabhut means the five elements of physical matter. Or in Hindi or Sanskrit, you can call them Prithvi, Jal, Agni, Vayu, Akash. Or as per English physical sciences, you can call them solids, liquids, gases, energy, and space. So these philosophies say that matter is not present outside. Matter is coming from inside you. You are creating it. You are generating it. So similarly, when your desires are properly shaped and placed inside in the mind, the corresponding subtle matter gets created and the corresponding gross matter gets created. So whatever you want comes physically outside as circumstances, as conditions, in the form of people, in the form of events, in the form of happenings. So you have a control over what is happening in your life. Your destiny is being shaped up by you. You are creating it. You are the creator of what is happening in your life. So this is the truth. And once you know this truth in your life, you will feel a sense of power. You will feel you have tremendous knowledge over how creation works. And you can create anything you want. Now, because you know the truth, there are no limitations in your world. There are no limitations in your universe. You think big in a particular way, and big things start happening in your life. If you have doubts about those big things, then those doubts damage the subtle matter. Those doubts damage the gross matter from being created. So that reality does not happen. So you need to believe in what you want and allow it to get constructed, manufactured, produced, manifested in the world outside without disturbing your thoughts, having faith on your thoughts.
having the belief system that it has already happened to you, it is present in your world, then you will find it there. And not only you will find it, everybody around you will find it. It will become a common reality. It will not become only a reality which is individual to you in your mind. It will be a physical, common, external reality in the world outside. So, this is the truth which we must know, accept, admire, appreciate, and apply in our life. Many people do not know this. Only very few people who are extremely lucky, extremely fortunate, for whom it is destined to know this, they know this. So it has to be practiced. And then you will find big things happen easily. So these thoughts have to be generated easily. They should not be generated with a lot of force, with a lot of passion, with a lot of anger. They must be politely generated, softly generated, silently generated, calmly generated, peacefully generated, harmoniously generated. Then you will find this universe, which is moving on its own steam, at its own speed, will allow what you want to come in harmoniously, peacefully, in its big scheme of things. And your desired reality will be a wonderful, true reality. So your world is actually a beautiful world, a wonderful world, because you know this fact that you can have whatever you want. This creation is not something which the Western world believes it to be. It is a living creation. Your thoughts can constantly modify it, upgrade it, give you new and new, better and better things. So it is like a plant, it is like a tree, it is like an animal. You can bring it to create whatever you want to create. So today's exercise is this only, that you are moving from a world of falsehood, not knowing the precise exact truth, to a world where destiny is in your hands. You can do whatever you want, in whatever way you want, in whatever scale you want, just by simply silently whispering to Prakriti, to the creation, to the universal mind, to give you what you want. That is the beauty of the whole thing. And you will find wonderful, marvelous, miraculous things will start happening in your life. It has to be experienced. And then you will realize the absolute truth of this fact. So, in the next 15 minutes, you close your eyes. Imagine that you are in that wonderful world, magical world, and all you need to do is think lightly, think softly, and hold on to that thinking. Not shake that thinking, not have lack of faith in that thinking, not have fear of any kind, not have disbelief that it will not happen. Be silent, be calm, hold on to that belief, and allow it to unfold, allow it to appear in your sight, allow the invisible to become visible. So that is today's exercise. So sit in a comfortable position, hold that position steady, close the door, dim the lights, close your eyes, and ensure you're not disturbed. And you may please start thinking that you are a blessed soul to be in a wonderful world, miraculous world. All you need to do is think correctly, think lightly, think peacefully. And for that, what you are desiring to appear out of the invisible in the visible domain of your life, and let it be visible to all that you know, and let it come in an easy, simple, loving manner, ever for you and for all those whom you love. Please start. That's all. क्या एक्सपीरियंस हुआ या रामगोपाल? हम्म, मुझे लगता है कि मैं आज से लेके अंत तक पहुंच गया सर. मेरा इमेजिनेशन बहुत पीक पे था. व्हाट आई फील राइट, आई नीड जॉब राइट. So I started seeing the job. I got the job. After getting job, I'm seeing this thing from that company what I'm working, right? What the money I'm getting, I'm distributing to the others. I'm doing service also for the company also, and from that money, I'm doing service for the others. I'm putting a lot of plants. I'm taking a lot of people on the spiritual path. I'm seeing people are need this path. और मैं देखा मेरे पीछे काफी कारवा चल रहा है. And when times come, I realized right now time to leave. मैंने आसपास सबको देखा, सब लोग खुश थे, मैं भी खुश था. I was satisfied at least while living.
एंड देन मैं पहली बार मैंने प्रकृति को प्रणाम किया और प्रकृति ने मुझे प्रणाम किया, हम दोनों एक दूसरे को प्रणाम किए, धन्यवाद दिया और मैं अपनी जर्नी पे आगे मूव हो गया। आगे मूव होने पर फिर ब्लैंक था, फिर मैंने देखा कि फाइनली आई रीच द प्लेस राइट फ्रॉम वेयर आई ओरिजिन, वो बोलते हैं परमात्मा, एंड आई वांट टू गो एंड डिजॉल्व दैट वन, एंड फाइनली आई डिजॉल्व दैट वन एंड आई थिंक आई फिनिश दैट वन। आफ्टर दैट आई थिंक आई वाज लिटिल बिट ब्लैंक एंड देन अगेन आई एनालाइजिंग माय ओन थॉट्स, ओके, कि आप जैसे एनालाइज करते हो व्हाई दिस थॉट इज कमिंग टू मी from today onwards to the end journey, why is coming, so I found that one मेरी माई दिनचर्या ऐसी है शायद इसीलिए ऐसे थॉट्स आ रहे हैं, ऐसा है, या हम दिन भर जो नॉलेज ले रहे हैं, मतलब दैट्स व्हाई एनालाइजिंग। बट टू थिंग्स आई नोटिस, वन आई फर्स्ट टाइम आई रियलाइज फार्मलेस नेचर, जो प्रकृति बोलते हैं अपना, मुझे दिखाने कैसा, लेकिन हमने एक दूसरे को प्रणाम प्रणाम किया चलने से पहले, और जो फाइनली जो होता है डिजॉल्विंग, आई अंडरस्टैंड टुडे, एटलीस्ट दैट फीलिंग लिटिल बिट आई गॉट इट, नॉट मच, आई कांट होल्ड दैट फॉर लॉन्ग टाइम, दैट्स ओके इट। ओके। ठीक है, औरों का भी सुनते हैं। डॉक्टर प्रणव। Yeah. In fact, there are a few things that fell in place for me, you know, like the vision. I see. One thing I got to be present in the meditation was quite many times people are the source of everything. You are the source of everything. And I remember in one of the conventions say something, and people, snubby say that no, don't tell everything is outside there. People have to do it. You are at the source. I thought these are a bunch of idiots, but they were idiots. But today I realized, even though they didn't realize what they said, I realized today that you are at the source, because as you as I went into meditation, you realize be present to receiving great things in life, becoming peaceful, anything that you want. I made it very clear that you generate actually energy to go out into the world. So we are subconscious mind. You generate energy to go out into the world, and this energy goes out and connects to the world outside, and is a kind of receiving station on the other end, and it starts giving a message from that side, and you end up being a receiver. You know, because somewhere the connect is there, and you get towards what you want to achieve. It is simply it is lost in the ocean. It sends signals to the area command, and the area command sends signal, and along which you have to orient yourself. And and the ship reaches the harbor. I think our goal realization is nothing different from that, except that when we generate and one of the important thing is when we involve the peaceful, blissful, celebrative, and all those wonderful emotions, which I call it as sattva. When you bring that pure sattva into things, your ability to focus and also to send forth energies into the world for it to manifest, it become more powerful. I was able to look at all the goals that I wanted to achieve in my life, and I felt not that it is achievable logically. Experientially, I felt that is possible. It is like an experience that it is going to happen. So that was that was the experience I had. It was good, very good. ओके। हाँ द्विवेदी जी। I'm not. आपका माइक म्यूट पे है। नमस्कार सभी को। नमस्कार। मैं इनफैक्ट मैं आज पहली बार ये किया, मतलब इस प्लेटफॉर्म पर, और भी कुछ मौके लगे हैं। तो पहले तो बड़ी ताकत लगानी पड़ी अपने आप को, इकट्ठा करने में ताकत लगानी पड़ी, क्योंकि ऑफिस से मैं जस्ट लौटा ही था, तो बहुत सारी चीजें थी, एंड आंख बंद करना आसान था, लेकिन मन में बातें चल रही थी, दिमाग में बातें चल रही थी, एंड पूरा ऑफिस घूमता रहा। फिर धीरे धीरे ऑफिस छूटा, फिर घर की बातें, एंड फिर उसके बाद घर की बातें काफी देर तक चली, एंड फाइनली फिर मैं कुछ फ्रेंड्स के साथ मैं उनके साथ एसोसिएट होना चाहता था, जिनको मैं कुछ पिछले दिनों में सोच रहा था। वो लोग मेरे को याद आए, 3-4 लोग हैं जो कुछ मेरे सराउंडिंग्स के ही हैं, कुछ दूसरे डिफरेंट फील्ड के हैं। उनके साथ मैं मिलकर के कोई प्रोजेक्ट करना चाह रहा था, तो वो मेरे को याद आए। उनके बारे में थोड़ा सा ऐसा लगा कि हम सब एक ही टेबल पर बैठे हुए हैं, और वी आर डिस्कसिंग समथिंग, वी आर गेटिंग सम पॉजिटिव रिजल्ट्स,
एंड फिर धीरे 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 फिर पता नहीं कब सब गायब हो गया। एंड मैं भी, मुझे लगता है कि मैं सो भी गया कुछ कुछ देर के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि मैं बिल्कुल पूरी तरह से सो गया। एंड फिर एक खटका हुआ बीच में, तो उस समय मुझे लगा कि फिर से मैं वापस आया। एंड बस उसी स्टेज पर था। तो आनंद बहुत आया, आनंद बहुत आया। Okay. या अशोक जी। सर आज का जो एक्सपीरियंस है वो मैंने ऐसे इन्वेस्टर्स माइंड को ऐसा बोला कि भाई आफ्टर 12 इयर्स अगर मैं कुछ मेरे दिमाग में जो कुछ भी है वो मैं शिद्दत से करता हूँ और उस पे पूरा मेरी जान लगा देता हूँ तो कहाँ क्या होगा कहाँ तक वो कुछ पिक्चर मुझे तुम दिखा सकते हो क्या कि वेन आई डू ऑल दिस थिंग्स मैं जो कुछ भी करूंगा मेरा जो कि दिमाग में है वो पूरी शिद्दत से करूंगा तो मैं कहाँ पहुंचूंगा। तो एंड देन 3-4 मिनट के लिए मुझे कुछ आंसर ही नहीं आया। बाद में मैं पूरा एक अशांतता बहुत थी वहां पर कि बाद में मैं देखता हूँ कि एक 120 डिग्री में से कर्व जैसी बिल्डिंग है और वो आई थिंक वो 6 फ्लोर बिल्डिंग मुझे दिखाई दी और उसके बिल्डिंग के ऊपर कुछ झंडे कलर के दिखाई दे मुझे और नीचे उस बिल्डिंग के ठीक सामने एक वन सिक्स छोटा एक वन ग्राउंड फ्लोर जैसा एक हॉल मतलब एक बिल्डिंग थी उससे मैं बैठा था और वहां से मैं वो झंडे वॉच कर रहा था। मेरे सामने कुछ टैक्सेशन से रिलेटेड कुछ तो भी लोग टीम आई हुई थी और जो हम लोग कुछ भी एक अडॉप्शन की बात कर रहे थे कुछ एक वो कैमरा चालू और अ, चल रहा था तो और हम लोग कुछ टैक्स एग्जेम्पशन की बात कर रहे थे और कोई डेलीगेट आने वाला था उसके हम वेट कर रहे थे और हम लोग कि अगर हम कोई नोबल काम कर रहे हैं तो हम गवर्नमेंट को उस काम के लिए कुछ टैक्स में डिस्काउंट देगी क्या वगैरह इस तरह की बातें कर रहे थे ऐसा चल रहा था। अच्छा, भरत दुकान पे थे कि मन के अंदर थे? Yes, sir. Yeah, so were you able to do this exercise or you were in the shop? I'm in the shop, sir. Closed the door, but I entered lately. Okay, okay, So I didn't know what was the topic. okay, I was just calling all the people who cheated me. If do the justice and come and give back the money okay, or whatever. okay, And I felt warmth in my palms, a kind of heart sensation, heartbeat sensation. okay, थोड़ा वार्म भी हुआ एंड okay, विजुअलाइजेशन में तो कुछ नहीं हुआ। okay. देखिए, मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं कि माइंड्स एक्चुअली क्या करते हैं, okay? और जो इंडिविजुअली एक्सपीरियंस हुआ उसको मैं उसके साथ कनेक्ट करके समझाना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि जब हम बाहर की दुनिया से अंदर आते हैं तो अपनी आंखें बंद करते हैं तो हमारा जो मानस है, कॉन्शियस माइंड है, वो अभी भी एक्टिव होता है। वो बाहर की कुछ रियल घटनाओं को, रियल सेंसेशंस को, आंखों के, कान के, वो पिक करता हुआ या उसकी मेमोरी चलाता हुआ चलता है। एक एक वीडियो चलता है कॉन्शियस माइंड। वो कुछ देर चलने के बाद वो बंद हो जाता है। अभी आपने देखा कि द्विवेदी जी के केस में क्या हुआ कि उनको ऑफिस की घटनाएं याद आ रही थी, तो उनका वो जो कॉन्शियस माइंड था वो ऑफिस की घटनाएं पिक कर रहा था। उसके बाद उनको कुछ घर की घटनाएं याद आई। तो इसमें भी उनका कॉन्शियस माइंड जो था उसमें उनका जो कॉन्शियस माइंड था उसकी जो रिकॉर्डिंग्स थी वो प्ले हो रही थी और घर के सीन चल रहे थे। उसके बाद उनका बोलना चाहिए कि साइलेंस हुआ, नींद सी आ गई, नींद खुली और बहुत अच्छा लगा, आनंद का एहसास हुआ। तो आनंद कहाँ आता है? आनंद और अंदर के माइंड में आता है, जिसको हम यूनिवर्सल माइंड बोलते हैं या बुद्धि बोलते हैं। सबसे बाहर के माइंड में क्या आता है? सबके बाहर के माइंड में रीजनिंग आता है, तर्क आता है, रिकग्निशन आता है और उसके बेसिस पे हम वस्तुओं को आइडेंटिफाई करते हैं, ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उनके कलर, शेप, नाम
उनका मीनिंग, उनके कुछ डिस्क्रिप्टिव आइडिया, ये सब हमारे मन में पहले पिक होता है। फिर जब सबकॉन्शियस माइंड में हम आते हैं, तब वहां थिंकिंग होती है, वहां रीजनिंग नहीं होती है, वहां आइडेंटिफिकेशन नहीं होता है, वहां थिंकिंग होती है, कॉन्टेम्पलेशन होता है, कॉन्सेंट्रेट माइंड कर जाता है, धारणा हो जाती है, समाधि लग जाती है। और द्विवेदी जी के केस में इनको कुछ अपने फ्रेंड्स याद आए जिनके साथ इनको कुछ प्रोजेक्ट करना था। तो क्या हुआ कि ये एक रियल सिचुएशन है, रियल फ्रेंड्स हैं, इमेजिनरी नहीं है, और प्रोजेक्ट भी रियलिस्टिक है, जीवन का हिस्सा है, उनकी याद आ गई। उसके बाद वो चले गए अंदर बुद्धि में या यूनिवर्सल माइंड में, और जहां पर कि अच्छा लगता है, जहां पर कि सात्विक फील होता है, जहां पर कि आनंद का एहसास होता है। तो अभी जो सबसे बाहर का जो माइंड है, उसमें जो कंसंट्रेशन होता है उसको सवितर्क समाधि बोलते हैं। वहां पे हम रीजनिंग का प्रयोग करते हुए ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उसका नाम, उसका मीनिंग, उसकी आइडिया उठाते हैं। और अगर हम डीप जाते हैं इसमें, तो ये निर्वितर्क हो जाता है, रीजनिंग बंद हो जाती है, हमको सिर्फ वो ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। हम उसका नाम भी भूल जाते हैं, हम उसका मीनिंग भूल जाते हैं, हम उसका डिस्क्रिप्शन भूल जाते हैं, सिर्फ दिखता है, सिर्फ वो ऑब्जेक्ट ग्लो करता है बस। जब हम सबकॉन्शियस माइंड में आते हैं, तो सबसे पहले सविचार समाधि लगती है। सविचार समाधि में क्या होता है, हम ऑब्जेक्ट तो देख रहे हैं, साथ में थॉट्स के साथ देख रहे हैं, तो थॉट्स की कमेंट्री चलती है। और ये जब हम और गहराई से इसके अंदर जाते हैं, तब ये निर्विचार हो जाता है। तब हमको वो वस्तु फिर दिखती है, लेकिन थॉट्स बंद हो जाते हैं, उसकी कमेंट्री बंद हो जाती है। वो आप ऐसा समझ लीजिए कि आप टीवी पे क्रिकेट का मैच देख रहे हैं, लेकिन आपने ऑडियो बंद कर दिया है, कमेंट्री बंद हो गई है, सिर्फ आपको वो खेला दिख रहा है बस। वो निर्विचार समाधि है। जब निर्विचार समाधि लग जाती है, तब हम स आनंद समाधि में जाते हैं, बुद्धि वाले समाधि में जाते हैं। वो जो इन्होंने आनंद का एहसास किया, इनको अच्छा लगा, वो स आनंद की समाधि है। और स आनंद वाली जो समाधि है, वो सृष्टि की अंतिम समाधि है, मैनिफेस्टेड क्रिएशन की लास्ट समाधि है। उसके बाद की जो दो समाधियां हैं, वो क्रिएशन के बाहर है। तो इन्होंने तीनों माइंड क्रॉस किए, और प्रॉपर सीक्वेंस में, जैसा एक आइडियल सिचुएशन में होना चाहिए, वैसे इन्होंने देखा। राम गोपाल सिंह के साथ क्या हुआ कि इमेजिनेशन आ गई। इमेजिनेशन जो है, वो एक वृत्ति है, वो एक माइंड की मॉडिफिकेशन है, वो एक माइंड का फ्लक्चुएशन है। माइंड अपनी जगह से हिल जाता है और कहीं सफर पे चला जाता है, काल्पनिक, जो कि रियल नहीं है, जो कि कभी देखा हुआ नहीं है पास्ट में। तो वो उस दिशा में चला गया। तो ऐसे माइंड पे कंट्रोल कम होता है, इसलिए वो अपने आप जर्नी पे निकल जाता है, आउट ऑफ कंट्रोल साइड से निकल जाता है। ओके। डॉक्टर गुणा के केस में भी उनका माइंड जो था, वो एक्टिव हो गया, मतलब वृत्तियों में आ गया, और एक एक जर्नी करने लग गया। ये अशोक कुलकर्णी जी जो हैं, उनका भी वो इमेजिनेशन के मोड में चले गए। उन्होंने देखा कोई टैक्स वाले आए हैं, गवर्नमेंट का है कुछ, टैक्स डिडक्शन की बात हो रही है, झंडे दिख रहे हैं, ग्राउंड फ्लोर का जगह है, और वो जगह देख रहे हैं। तो ये माइंड्स जो हैं, ये हाईली ट्रेन्ड माइंड्स नहीं है, ये माइंड्स हाईली डिसिप्लिन्ड माइंड्स नहीं है। इनमें, इनको कंट्रोल करने के लिए योग सूत्रों में पहले कहा जाता है कि क्रिया योग करना चाहिए, एक्शन वाला काम करना चाहिए। तो क्या एक्शन बोला जाता है? पहले बोला जाता है कि आप इंद्रियों को बस में करना सीखिए, सेल्फ डिसिप्लिन करिए। इंद्रियों को बस में करना मतलब सेल्फ डिसिप्लिन करना। सेकंड, आप अपने बारे में जानिए, सेल्फ स्टडी करिए कि आप क्या चीजों से बने हुए हैं, आपके अंदर का सर्किट क्या है, वो सर्किट की फंक्शनैलिटी क्या है, अंदर के क्या क्या बिहेवियर पैदा होते हैं। और जिसको कि हम लोग सांख्य में बोलते हैं कि 25 तत्वों को जानिए, कि आपके 25 तत्व क्या हैं, जिस सृष्टि में आप हैं उसके 25 तत्व क्या हैं। तो जब आप वो सेल्फ स्टडी करते हैं, उसके बाद तीसरा बोला जाता है कि ईश्वर की भक्ति करिए। और ईश्वर को बोला जाता है कि जिनका ज्ञान सर्वोच्च है,
तो जब आप भक्ति करते हैं ईश्वर की, जिनका ज्ञान सबसे हाईएस्ट है, तो क्या होता है कि आपका ज्ञान बढ़ने लगता है। और हम लोग फंसते क्यों हैं? हम लोग जीवन में फंसते इसलिए हैं कि हमको अज्ञानता है, हमको अविद्या है। और ये अविद्या के कारण हमको अहंकार आ जाता है, ईगो आ जाता है। और ये ईगो के कारण हमारे लाइक्स और डिसलाइक्स आ जाते हैं। बोलिए कि हमारे राग द्वेष आ जाते हैं। और इसी अविद्या के कारण, इसी ईगो के कारण हमें क्लिंगिंग टू लाइफ आ जाती है, अभिनिवेश आ जाता है। हमको मृत्यु से भय लगता है, हम जीना चाहते हैं, हमारे अंदर निडरता नहीं रहती है, हमारे अंदर भय घर कर लेता है। तो ये 5 जो हैं, इनको तोड़ने के लिए हमको सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ स्टडी और ईश्वर के प्रति परिधाना करना पड़ता है। दूसरा, इन 5 को कम करने के लिए हमको ध्यान की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ध्यान की प्रैक्टिस क्या होती है? मैं आपको बहुत सरल शब्दों में बताता हूँ। संजय सर, हाँ बोलिए। सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ स्टडी और ईश्वर की भक्ति, चौथा क्या बताया आपने? ओके, ये 3 जो हैं, इनको कॉम्बिनेशन में क्रिया योग बोलते हैं। जी। अच्छा, दूसरा मैं आपको बता रहा था कि हमारे अंदर कुछ क्लेश होते हैं, 5 क्लेश होते हैं। और वो 5 क्लेश क्या करते हैं? हमको लिमिट करते हैं, हमको दुखी करते हैं, हमारे योग में बाधा बनते हैं, हमारे अनलिमिटेड होने में रोक बनते हैं, हमारे लिमिटलेस तक पहुंचने में ऑब्स्ट्रक्शन खड़ी कर देते हैं। तो सबसे बड़ी ऑब्स्ट्रक्शन जो पैदा होती है वो अविद्या से पैदा होती है। हम अपने इस शरीर को अपने आप को समझ लेते हैं। और दूसरा, हम अपने अहंकार को अपने आप को समझ लेते हैं। तो जब बच्चा छोटा होता है तब अपने शरीर को अपने आप को समझ लेता है, और जब बच्चा बड़ा होता है तब अपने अहंकार को अपने आप से जोड़ लेता है। तो ये दोनों उसके लाइफ में बहुत कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करते हैं। वो मैं और मेरा में फंस जाता है। अच्छा, इन दोनों के कारण उसके अंदर में लाइक्स और डिसलाइक्स पैदा होते हैं। लाइक्स मतलब राग, अटैचमेंट्स, और डिसलाइक्स मतलब अवर्शंस, जिनसे वो हेट करता है, नफरत करता है, दूर जाना चाहता है। वो स्ट्रॉन्ग लाइक, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक्स उसके अंदर आ जाते हैं। और उसके बाद वो उसके अंदर भय आ जाता है। भय बचपन से रहता है, हर जीव में रहता है। हर जीव जिंदा रहना चाहता है, मरना नहीं चाहता है। लेकिन क्योंकि ये 4 बन गए हैं तो ये स्ट्रांग हो जाता है, ये भय। और इसको संस्कृत में अभिनिवेशा बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको साधारणतः क्लिंगिंग टू लाइफ बोलते हैं। हम जीवन को पकड़ के रखते हैं। तो अगर हमको इन 5 क्लेशों से मुक्ति चाहिए तो हमको क्रिया योग से चालू करना पड़ेगा, जो कि सिंपल है, जो कि कॉम्प्लिकेटेड साधना नहीं है, सिंपल साधना है। और सेकंड, हमको ध्यान पे जाना पड़ेगा। जब हम ध्यान करेंगे तभी भी क्लेश टूटेंगे, क्लेश कमजोर पड़ेंगे। तो ध्यान में क्या करते हैं, मान लीजिए। संजय सर, सॉरी, हाँ, मैं थोड़ा सा स्लो लर्नर हूँ, मैं 1 मिनट के लिए रिकॉल करूंगा। अविद्या और अज्ञान एक ही चीज है कि अलग अलग है? एक ही है। दोनों एक ही है ना? हाँ, तो वन थिंग इज अविद्या, सेकंड इज राग, थर्ड इज द्वेष, और चौथा जो बताया आपने नहीं, वो है आप लिखिए, मैं आपको बताता हूँ। पहले है आपका अविद्या, अविद्या। इग्नोर बस। हाँ, अविद्या सबकी जननी है, बाकी की जननी है। जी। अविद्या के बाद लिखिए अस्मिता, इंग्लिश में लिखिए ईगो। जी। अच्छा, थर्ड जो है वो लिखिए अटैचमेंट या राग। आपने लाइक डिसलाइक में जो डिस्क्राइब किया था दैट हाँ, मुझे अच्छी लगी, जिससे जुड़ जाए। हाँ, मतलब एक्सट्रीम लेवल पे एडिक्शंस जो होते हैं। और फोर्थ मैंने आपको बोला द्वेष, मतलब जो हम, जिससे हम अवर्सन अवर्शन है, हमको नफरत है, हेट्रेड है, दूर भागते हैं। अच्छा, पांचवा जो है वो है क्लिंगिंग टू लाइफ, उसको अभिनिवेशा बोलते हैं। ये बुद्धिमान से बुद्धिमान आदमी भी जीवन को पकड़ के रखता है। आप देखेंगे बहुत पावरफुल पॉलिटिशियंस, पावरफुल बिजनेसमैन, पावरफुल फिल्म एक्टर्स, पावरफुल सन्यासी, ज्ञानी लोग, वो भी बॉडीगार्ड्स लेके चलते हैं,
जेड सिक्योरिटी चाहिए उनको, भय है। तो ये बुद्धिमान से बुद्धिमान आदमी भी इसका शिकार होता है। तो इसको रिमूव करने के लिए एक तो मैंने आपको बताया क्रिया योगा, स्टार्टिंग के 3 सिंपल स्टेप, और दूसरा एक स्टेप बताता हूं, ध्यान करना। जब हम ध्यान में जाते हैं तो ये 5 क्लेश जो हैं ये कमजोर पड़ जाते हैं। तो वो क्यों कमजोर पड़ते हैं? क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि हमारे माइंड में कई थॉट्स रहते हैं। मान के चलिए कि हम एकाग्र नहीं है, वन पॉइंटेड नहीं है, मेरे माइंड में 10 थॉट है। तो ये जो 10 थॉट हैं ये एक्चुअली 10 मेमोरीज हैं जो एक्टिव हैं। तो वो ब्लड की सप्लाई ले रही हैं, ब्लड का न्यूट्रिशन ले रही हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई ले रही हैं, एनर्जी ले रही है बॉडी। अब अगर मैं इन 10 में से एक ही पे ध्यान लगाऊं, अपने माइंड को एक ही पे फोकस करूं, सेंटर करूं, तब क्या होगा? बाकी 9 जो हैं उनका मेरा ब्लड का सप्लाई, एनर्जी का सप्लाई, ऑक्सीजन का सप्लाई, न्यूट्रिशन का सप्लाई धीरे धीरे घटने लगेगा। और जिसपे मैं फोकस किया हुआ हूं वहां ग्रोथ आएगी, क्योंकि वहां न्यूट्रिशन आ रहा है। वहां पे जो भी मैं सोच रहा हूं वो मल्टीप्लाई होगा, वो एम्पलीफाई होगा, वो रेजोनेट होगा, वो ज्यादा ब्रेन सेल्स में फैल जाएगा। तो अगर मैं अपना ध्यान, मान लीजिए मैं भक्ति का मार्ग ले रहा हूं और मैं ध्यान लगा रहा हूं ईश्वर पे कि ये अनंत क्या ज्ञान है, और बाकी 9 चीजों पे मैं अपना ध्यान घटा रहा हूं, उनके बारे में नहीं सोच रहा हूं, उन विचारों को बंद कर रहा हूं, सुला रहा हूं, और एफर्ट लगा के एक ही को एनर्जाइज कर रहा हूं, तो बाकी 9 जो है स्लोली स्टेडली डिके हो जाए, वो मेमोरी का पावर खत्म हो जाए, और जिसको मैंने एनर्जी दे के रखी है वो चढ़ने लगेगी ऊपर सत्ता में, और वो 1 पॉइंटेड बन जाएगी। फिर मेरे अंदर उस प्रकार के गुण दिखने लगेंगे, तो मेरे अंदर ईश्वरीय गुण दिखने लगेंगे, ऐश्वर्य आने लगेगा। तो ये योगिक प्रिंसिपल है कि आप कैसे ध्यान के माध्यम से एक पे फोकस करें, एकाग्र करें मन को, और उसी को बढ़ाएं। और जब आप उसको बढ़ाते रहेंगे तो आपके अंदर वो सिंगल पॉइंटेड यूनिट डायरेक्शनल ग्रोथ होती रहेगी। अच्छा, फिर आपके अंदर एक स्टेज ऐसा आएगा बुद्धि में कि आपका नॉलेज भी पीक पे चला जाएगा, और नॉलेज जो है वो पावर होता है, पावर भी पीक पे चला जाएगा। आप ओमनीसिएंट भी हो जाएंगे, ओमनीपोटेंट भी हो जाएंगे। लेकिन अभी आप सृष्टि के अंदर हैं, आपकी बुद्धि ऑपरेशनल है, बुद्धि प्रेजेंट है, और ज्ञान भी पीक पे है, सत्ता भी पीक पे है, ऐश्वर्य भी पीक पे है। इस सिचुएशन में आपको दुनिया में जो जो काम करना है आप कर लीजिए, और फिर आप दुनिया से एग्जिट ले सकते हैं, बुद्धि से अपनी चेतना को बाहर निकाल सकते हैं। तो वो एक अलग कहानी है। तो जो जिन लोगों को मोक्ष प्राप्त करना होता है वो लोग पहले अपना संसारिक काम पूरी तरीके से कर लेते हैं, उसके बाद एग्जिट लेते हैं। तो हम लोग को भी यही सीखना है कि हम जिस दलदल में फंसे हुए हैं वहां से पीक पे कैसे जाएं। हमारी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी लाइफ का पर्पस है, जो भी गोल है, जिस लिए भी हम धरती पे आए हैं, मानव रूप में आए हैं, उसको फुलफिल करें। संजय सर, मैं लीव। जय, ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वेलकम। तो ये सबके लिए समझने की बात है कि हम कंसंट्रेशन क्यों सीखते हैं। हम कंसंट्रेशन इसलिए सीखते हैं कि जो हमारा डिजायर्ड पर्पस है वो एक्टिवेट हो, और बाकी जो अनडिजायर्ड एक्टिविटीज हैं वो सबडी हो, वो खत्म हो जाए। और जैसे जैसे हम ये करते चलते हैं वैसे वैसे हम अपने लाइफ पर्पस की तरफ बढ़ने लगते हैं, और हमारे अंदर ईश्वरीय ताकत आने लगती है, और फिर हमको समाज जो है वो ऊंचा दर्जा भी देने लगता है। उनको मालूम पड़ता है कि ये आदमी स्पेशलिस्ट है, और इसके पास सत्ता भी है, ज्ञान भी है, और ये वो मैनिफेस्ट कर सकता है जो कि ये करना चाहता है। क्यों? क्योंकि ज्ञान हाई लेवल का है, सत्ता हाई लेवल की है, पावर से मैनिफेस्ट होता है, क्योंकि हम ट्रांसफॉर्म करते हैं थॉट्स को मैटर में। तो जिसके पास जितना ज्यादा ज्ञान होगा, जितना ज्यादा सत्ता होगी, वही बड़े लेवल का मैनिफेस्टेशन कर पाएगा, कॉन्सेंट्रेशन के साथ कर पाएगा। क्लियर है? बस जी एक सर। चीज, एक चीज सर इसमें, हाँ, concentration on one thing means that one thing is the desire या what we want to manifest, what that one thing concentrate, what that thing जो मैं दिस इज अपॉन यू कि आप क्या वन चीज चूज करना चाहते हैं,
वन कुछ भी हो सकता है, वन होना चाहिए। बुद्धि में आते आते आपको वन का प्रैक्टिस चालू करना चाहिए, और जब वन हो जाएगा आप क्रिएशन से एग्जिट कर जाएंगे। आपका पावर इतना हाई हो जाएगा, नॉलेज इतना हाई हो जाएगा कि आप प्रकृति से बाहर निकलना सीख जाएंगे। क्लियर है? या और किसी का क्वेश्चन? लेकिन असल आज का जो लेक्चर हुआ है ना, वो हम एक बार और सुनना चाहते हैं कि क्या हुआ है, वो कुछ कुछ मतलब वो एक बार और सुनना चाहिए मुझे, ऐसा लगता है मुझे। हाँ, तो इसका रिकॉर्डिंग मेरे ख्याल से आदित्य ग्रुप में देगा, और आप उसको सुन सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं तो मेरे पास मेरे मेल आईडी पे इसकी रिकॉर्डिंग जैसे ही होगी कंप्लीट, यस वो जूम से आती है मेरे पास, तो वो एक मतलब रॉ वीडियो मैं आपको शेयर कर सकता हूँ, उसका एक पासकोड रहता है, आप उसको सुन सकते हैं। ठीक है। सर ठीक है। आपके पास ठीक है। 1 to 24 सारी एक्सरसाइज का वीडियो है एक जगह कहीं, मतलब उसकी रिकॉर्डिंग फोल्डर ऐसा कुछ? देखो ऐसा है कि वन से है कि नहीं है मुझे ख्याल नहीं है, बट जब से हम लोग के दिमाग में ये आया तब से हम लोग रिकॉर्डिंग करते जा रहे हैं, और वो आदित्य उसको बना बना के ग्रुप में डाल रहा है। और अगर चाहिए तो जो यूट्यूब का चैनल है संजय मनसुखानी के नाम का, उसमें वो पोस्टेड होंगे, एक बार देख लो कौन से हैं कौन से नहीं हैं, फिर मेरे को बताना, तो मैं आदित्य से एक बार पूछ लेता हूँ। हाँ जैसे कि हाँ सर, इसका इसकी एक लाइब्रेरी चाहिए सर, मतलब अगर कोई रेफरेंस लेना चाहता है कुछ कुछ एक आध चीज का, तो ही कैन अगेन अगेन वो सुन सकेगा, और उसको कुछ करेक्शन करना है तो कर पाएगा। हाँ ठीक है, मैं सहमत हूँ आपकी बात से। हाँ उस इस सीक्वेंसली चला सर, तो कब से सीक्वेंस में आप रिकॉर्ड किए हैं वहाँ उसका वन बाय कहीं वन प्लेस पे मिल जाए सारा लिंक, तो इट्स गुड। हाँ हाँ, तो उसमें उसको मेरे ख्याल से प्लेलिस्ट बनानी पड़ेगी हाँ सर। जिसमें ये 24 वो डाल दे, तो पूरा पूरा ग्रुप आपको मिल जाएगा। तो राम गोपाल, तुम ये कर सकते हो कि आदित्य से एक बार कांटेक्ट कर लेना, उसको बोलना कि ये 24 का तुम प्लानिंग कर रहे हो क्या, या तो अपने ये कर सकते हैं कि बीच में एक वीक का ब्रेक ले रहे हैं हम लोग, फिर दोबारा इसको चालू कर सकते हैं, दोबारा इसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि क्योंकि मेरा ये मानना है कि ये एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ सर। और जो भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं उनके अंदर एक इंटरनल चेंज आता है। सर, अभी क्या हो रहा है सर, वही हम बहुत ही बेसिक लेवल, मगर हमारे सोचने का तरीका अभी थोड़ा थोड़ा तो सुधर रहा है, लेकिन फिर भी हम बहुत बेसिक पे हैं, मतलब ये इतना आसान तो है नहीं कि अ, आपकी आवाज चली गई। हाँ मैं सुन रहे हैं सर, ये आ रहा हाँ है। हाँ, आ रहा है, बोलिए। मैं ये कह रहा था कि हम लोग अभी तो अपनी शुरुआत की जर्नी पे, तो कभी कभी तो एब्स्ट्रैक्ट तो आते रहेंगे, तो हम उसको कैसे ये करें कि किस प्रकार से, अभी आपने तो बताया कि पूरा जो एक विधिवत बताया आपने, वो तो हम करने क्रिया योग के बारे में तो हम प्रैक्टिस करेंगे, लाएंगे प्रैक्टिस में, तो उस वक्त हमको जो जो भी तकलीफ होगी, कि मतलब ये कुछ एब्स्ट्रैक्ट लाएंगे तो उसको किस तरह रिमूव करें, इसके बारे में पूछना ओके, देखिए हम लोग ने बहुत क्लियरली इसके बारे में सोचा नहीं है, बट ब्रॉडली अभी जो कर रहे हैं था। हाँ वो हमने पहले ये 24 एक्सरसाइजेस कवर किए हैं, और ओके। मेरा मन है कि ये 24 कम से कम एक बार और करना। अ, हाँ सर। और अगर लोग लोग इसको रेगुलर करना चाहते हैं तो हम लोग इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि ये एक्सरसाइजेस बहुत पावरफुल हैं, बहुत हाँ सर। इंसाइट देती हैं, और बहुत कुछ समझाती हैं कि हमारा इनर माइंड का कंडीशन क्या है और कहाँ डिविएट हो रहा है।